Hello my dear student, good morning once again, and today we see that is topic is the Findrell-Kraft alkylation and arylation. Okay, first we see the Findrell-Kraft alkylation. So let's see what is meant by the alkylation. Alkylation, it means that the substitution of the what alkyl group in a benzene ring. So let's see, here we take the benzene ring and add the what here alkyl group. It means that the what CH3 Cl, and that reaction is done in the presence of anhydrous AlCl3. Now first that term and that term is react with each other and to form CH3 Cl plus AlCl3. ठीक है, तो in that condition that electron is gained here and that electron is leaving group and attached to that group, and that's why here form what CH3 plus AlCl4, and that's why here positive charge is formed. That means they work as a R plus ion. That means here this formation, it is the formation of that term, it is known as the formation of electrophile. ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क कर रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली दैट टर्म इज कनेक्टेड टू दैट द बेंजीन रिंग एंड दैट टर्म इज अटैच और attract to or attached to the what ortho or what para position. Okay, that's why here form what if you take the what in which term, if you take that ortho position, that time they form a what, it is known as the methyl benzene. It is known as the methyl benzene और it is known as, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो that is known as the what toluene. It is also known as the what toluene. So toluene, it is also known as the what toluene or a methyl benzene, and in that condition that AlCl4 is when the CH3 is attached to that group, that time that in that the H plus ion is comes out, H plus ion then react with what AlCl4, and that's what here form what HCl plus AlCl3, and that is the what, that is the catalyst. That means the catalyst, it is the come out and HCl also the come out, that's why here also gives the what HCl. Okay, that reaction it is known as the Findrell-Kraft alkylation reaction. Okay, Findrell-Kraft alkylation reaction. Okay, now the next one is the Findrell-Kraft arylation reaction. What is the arylation? Arylation, it means the addition of the aryl group. Aryl group, it means what, in the benzene ring. Aryl group, it means the CH3 CO Cl. Okay, CH3 CO Cl. In that group, that is the aryl group, and aryl group is attached to that the benzene ring. This reaction also done in the presence of the what anhydrous AlCl3. That's why the first react with that term, react with the that term. So what we get? We get the what electrophilic compound. That means the formation of the what electrophile.
इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? देखो CH3, C इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ Cl प्लस react with AlCl3. Okay, that time that group it is comes out and that attached to the that term and we get the what? Positive charge, that means the CH3, C positive charge here and here double bond plus AlCl4. Okay, AlCl4. Now this group is attached to that the benzene ring. In which position? Ortho or a para position. Okay, ortho or para position, that means we get that group. That means if you see here on that group and that group is attached to on that number carbon, carbon, double bond O and CH3. Okay, and next time when they react with the AlCl4, here is equivalent and plus we get the what? HCl. Okay, यहाँ पे आपको साथ में क्या मिलता है? HCl भी मिल जाता है. And what is the name of that compound? It is the name of what compound? It is the, देखो, that is the 2 carbon. It means the what? Phenyl, and that is the phenyl group. That means the 1 number पे क्या है? Phenyl. And what is group? What is the name? 1-phenyl ethanol. Why? Because that is the ketone group. समझ में आ रहा? तो here name 1-phenyl ethanol. And you can also say that the acetophenol. It is also known as, or also say that the what? Acetophenol group. Okay, so here that reaction it is known as the alkylation reaction. Okay, समझा? Alkylation and arylation क्या होता है? Alkylation it means that the addition of CH3Cl, and here CH3Cl it is work as the electrophile, and that electrophile is attached to the what? Electron rich group. इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप या हमने इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, दैट इज नोन एज द बेंजीन. एंड बेंजीन के पास होता है हर एक जगह पे होता है H+ आयन. यहाँ पे हर जगह पे आपका H+ आयन प्रेजेंट होता है, राइट? हाँ, यहाँ पे भी. तो क्या करता है यहाँ पे जब H+ CH3 ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया तो ये प्लस आयन R इफेक्ट जो शो कर रहा है, दैट R इफेक्ट इज अटैच्ड टू द एनी वन. When हाइड्रोजन इज रिप्लेस, हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होता तो उसके जगह पे ये जाकर अटैच कर लेता, राइट? तो अटैच करने की वजह से अब ये अटैच भी कहाँ पे करेगा? एक तो पैरा पोजीशन पे या तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्म करेगा. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पे मैंने पैरा पोजीशन पे इसका प्रिपरेशन किया और यहाँ पे HCl कम आउट हुआ क्योंकि हमारा ये जो है ये एज AlCl3 एज क्या कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह वर्क कर रहा है. और कैटालिस्ट कैसे बाहर निकला वो भी आपको मैंने बता दिया. ठीक है, फिर से ये जो आपका H+ आयन है जहाँ पे CH3 अटैच हुआ, यहाँ पे H+ था, वो H+ आयन ये जो AlCl3 जो प्रिपेयर हुआ था उसके साथ रिएक्ट करता है और ये आपका कैटालिस्ट जैसे के वैसे मिलता है और साथ में HCl मिलता है जो मैंने रिएक्शन में फाइंड आउट किया. सेम रिएक्शन यहाँ पे भी अराइलेशन के केस में हुआ था. यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन अराइल ग्रुप का करना है. ठीक है, इसको हम लोग एसिटिल क्लोराइड कहते हैं. ये आपका जो ग्रुप है दैट इज नोन एज द एसिटिल क्लोराइड. ठीक है, ये एसिटिल क्लोराइड है, ये अराइलेशन की तरह वर्क करता है और ये अराइलेशन फिर से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करता है और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करते वो बेंजीन रिंग में अटैच हो जाता है. ठीक है, व्हेन फिनरेल ग्राफ अल्किलेशन एंड फिनरेल ग्राफ अराइलेशन के लिए आपको बेंजीन रिंग अल्किलेशन का सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है वो याद रखना है और फिनरेल ग्राफ अराइलेशन के केस में बेंजीन रिंग का एसिटिल क्लोराइड या अराइल ग्रुप कैसे सब्स्टिट्यूट होता है वो देखना है. ठीक है, बहुत सारे बुक में आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रुप दिया है, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्लोरो कंपाउंड भी रह सकता है. जैसे कि देखो मैं एक रिएक्शन यहाँ पे करके दिखा देती हूँ. ये सपोज समझ लो क्लोरोबेंजीन है.
मतलब बेंजीन की जगह पे क्लोरोबेंजीन। हाँ, तो उस समय पे भी आपको सेम रिएक्शन ही करनी है, CH3CH मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपका प्रोडक्ट निकाल के बताती हूँ। यहाँ पे भी आपका अनहाइड्रस AlCl3 है। अब इस केस में क्या कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे मेरा दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। यहाँ पे एक मेरा है इस टाइप से, ये Cl है। अब मैं यहाँ पे CH3 यहाँ पे अटैच करती हूँ, ठीक है। और प्लस आपका दूसरा एक केस ऐसा आ सकता है जहां पे आपका ये Cl जैसे के वैसे है और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे ये Cl3 जो है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है। इट मीन्स दैट ये आपका कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये भी आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, ऑर्थोक्लोरोटुलिन, आप इसको ये भी नाम दे सकते हो ऑर्थोक्लोरो, ठीक है। ये आपका ऑर्थोक्लोरो के नाम से जाना जाएगा। ये आपका क्या कंपाउंड है, ऑर्थोक्लोरो है, ऑर्थोक्लोरोटुलिन, और ये आपका पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये पैरा पोजीशन पे आया और ये आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। जब आया तो ये जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। मतलब कि ये 20% प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो ये आपका 80% प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ऐसा क्यों, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ये माइनर प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है इसके कंपेयर में ज्यादा है। इस वजह से दैट प्रोडक्ट इट इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इट इज द माइनर प्रोडक्ट, ओके। और इस टाइप से आपका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे आया तो आप बोलोगे ऑर्थोक्लोरोटुलिन, और पैरा पोजीशन पे आया तो पैराक्लोरोटुलिन। इस टाइप से इसका नोमेनक्लेचर करोगे और यहाँ पे आपका ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।